a very warm welcome to this special edition of Mission Swachhata Aur Pani. It's a nationwide campaign by News 18 Network and Harpic for sustainable sanitation and clean water. Together, we are striving to mobilize the country towards a better sanitation and make it a Jan Andolan. I'm Shireen Bhan and joining me today is Anand. Namaste. Hi Shireen. Thank you very much, ladies and gentlemen. This is Mission स्वच्छता और पानी. ये आंदोलन है सैनिटेशन इंक्लूसिविटी के लिए. ये एक आवाज है सभी जेंडर, क्लास और कम्युनिटी के लोगों को एक जैसा सैनिटेशन इकोसिस्टम मुहैया कराने के लिए. ये एक प्रयास है ताकि सभी को स्वच्छ टॉयलेट्स मिल सके. ये एक अपील है राइट टू डिग्निटी और बिहेवियरल चेंज के लिए. बिल्कुल आनंद. And today on the occasion of World Health Day, Mission Swachhata Aur Pani is moving into its third season. So keeping Swachh Bharat mission at the core, the focus of this Anand is going to be how good sanitation practices, especially clean toilets, can lead to a healthier India. The message that we want to send out to every Indian this time is healthy hum jab saaf rakhe toilet hardam. Bilkul. And today, on the occasion of World Health Day, Mission Swachhata Aur Pani is bringing the country together for a dialogue on sanitation empowerment. Over the next few hours, we'll hear from government non-profits. We've got sanitation warriors, change makers, policy experts from across India and some even from around the world. And last but most importantly, the citizens of this country. तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं पिछले कुछ सालों में मिशन स्वच्छता और पानी बदलाव ला रहा है और एक स्वच्छ और स्वस्थ देश बनाने में अपना योगदान दे रहा है. Health, education, economic growth, environment continue to be critically impacted by lack of sustainable sanitation. Starting 2014, after PM Modi's clarion call for Swachh Bharat, एक कदम स्वच्छता की ओर चलें. India embarked on what is the biggest sanitation drive in the world to achieve universal coverage. In earnest conviction for the National Abhiyan, in 2019, Harpic and Network 18 launched Mission Pani in India. Network 18, Harpic and I have come together to start a people's movement, Mission Pani. I fully welcome and support this initiative. And soon created a global splash at the World Water Week 2019 in Stockholm. I urge every single person to join this water revolution. Its motif was beautifully captured by Prasoon Joshi and A.R. Rahman in this keepsake campaign anthem, which Mission Pani marked as Jal Pratigya Divas or the Water Oath Day. आज आपकी प्रतिज्ञा का दिन. We give water and sanitation the priority that it deserves. तुम सबको लेनी है जल प्रतिज्ञा. People from all walks of life took this sacred oath, led by the Vice President of India, Venkaiah Naidu. It gives me immense pleasure to associate myself with this much needed initiative. Campaign Ambassador Akshay Kumar addressed the nation. जुड़िए मेरे साथ हार्पिक न्यूज 18 मिशन पानी से, क्योंकि स्वच्छता और पानी आखिर बचानी है जिंदगानी. On World Toilet Day 2020, Mission Pani created history. It unveiled a first of its kind sanitation pledge and preamble at the Rashtriya Swachhata Kendra. हर घर पर पानी मिले, इसके लिए भी एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. Starting a high-impact conversation around sanitation security, behavioral change, immediate and effective policies, and empowerment of sanitation workers. जनमानस के अंदर यह बात बैठ गई है कि स्वच्छता का, पानी का, टॉयलेट का संबंध क्या है. In 2022, यह मिशन है कि लोग अपनी आदतों को सुधारें, क्लीननेस और हाइजीन को अपनाएं. the campaign entered into its third year with renewed focus on sanitation, cleanliness, and a push for clean and hygienic toilets. Join the mission, join the movement, join the change. Mission स्वच्छता और पानी मिलकर ले ये जिम्मेदारी. On the occasion of World Toilet Day, the campaign initiated a dialogue on sanitation empowerment. Sanitation, hygiene, water, these will continue to be very, very important agendas. With government leaders, sanitation warriors, celebrities. When I take road trips, I see public toilets there. The infrastructure is provided to us. Policy experts and citizens making an appeal for rights to dignity. स्वास्थ्य और पानी
दोनों मानव जीवन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम हर एक व्यक्ति को शौचालय उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। And an effort towards behavioral change at a national level. We bring everything put together and let's make it grand, and the behavior change should take place. The big moment came when the President of India, Draupadi Murmu, complimented Mission Swachhata Aur Pani for championing a national cause to make sanitation a nationwide campaign. And now, 2023, News 18 Network and Harbeek are renewing the focus on sanitation literacy with the aim of creating awareness on the importance of maintaining good hygiene and sanitation. With the motto of Healthy Hum Jab Saaf Rakhe Toilet Hardam, Mission Swachhata Aur Pani is bringing the country together to encourage the adoption of good sanitation practices for a healthier tomorrow. From the snowy mountains to the deep peninsula, from the forested northeast to the rugged west, Mission Swachhata Aur Pani is cherished as a guide, a reminder, an advocate, a reformer, an upholder of the global sustainable development goals. Mission Swachhata Aur Pani is a mission for every India, for every Indian. Well, that's right. That is our new pivot for this season. How clean toilets lead to killing germs and making our homes and surroundings healthy, which eventually, Anand, leads to a healthy nation. Healthy hum jab saaf rakhe toilet har dam. जी हाँ, that's the theme और the boot push for Mission स्वच्छता और पानी। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद इस पहल से जुड़ने के लिए। 2023 वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है हेल्थ फॉर ऑल। सरकार के इस विजन को पूरा करने के लिए किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छ भारत मिशन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, जरा बताइए। हेल्थ की जब आप कल्पना करते हैं तब आपका आवास स्वच्छ होना चाहिए, आपका पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि प्रिवेंटिव केयर के लिए भी कोशिश होनी चाहिए, तब होके एक हेल्थ बनता है। तो हम सब मिनिस्ट्री, जब मोदी गवर्नमेंट की यही विशेषता है, वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करते हैं। पहले क्या होता था कि जनता की डिमांड आई तो हमने अस्पताल खोल दिया, लेकिन अस्पताल खोलने से इश्यू सोल्व नहीं होगा, वहाँ डॉक्टर चाहिए। तो हमने क्या किया, 54,000 MBBS की सीट थी, आज बढ़ा के 1,03,000 कर दिया, यानी कि डबल कर दिया और आगे बढ़ रही है। वैसे PG की सीट डबल कर दी। वैसे 8 में, पहले 70 साल, ये 8 साल में हमने PG की सीट डबल की, हमने हॉस्पिटल डबल की, हमने 1,56,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किया, जो 6-7 हज़ार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है। तो वहाँ पर प्रिवेंटिव केयर भी मिलेगी और स्क्रीनिंग भी होगा, और वहाँ से टेली कंसल्टेशन से सामान्य गांव के गरीब व्यक्ति को एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन मिल जाता है। ये व्यवस्था हमने एक श्रृंखला चालू की। उसके अलावा चलो ये कर लिया, फिर भी बीमार व्यक्ति ना पड़े तो उसको आवास अच्छा चाहिए, को पक्का मकान, सभी लोगों को। हम ये सब हेल्थ सेक्टर हो या गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम हो, उसमें पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हमारी क्लैरिटी रहती है। हमने सैचुरेशन मोड पे काम किया कि भाई हेल्थ, सभी को हेल्थ अफोर्डेबल और एक्सेसिबल मिलने चाहिए, हर गरीब को अपना घर मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। तो आज सभी के घर में स्वच्छ पानी मिले, उसके लिए पेयजल योजना चलाई जा रही है। मिशन स्वच्छता और पानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs 3, 6 और 17 के साथ अलाइंड भी है, जिसका लक्ष्य है पार्टनर्स और पार्टनरशिप्स के जरिए सबको पानी और सैनिटेशन मुहैया कराना। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। क्या G20 जैसा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म इस पहल को एक नया और बेहतर आयाम दे सकता है? इट्स ए 4 लेयर हेल्थ सिस्टम। वर्ल्ड में 3 लेयर हेल्थ सिस्टम है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इंडिया में आशा के नाम से 4 लेयर हेल्थ सिस्टम है। दूसरा,
हम टीबी के सामने कैसे लड़ते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट से टीबी के सामने लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। टीबी निक्षय मित्र के साथ संवाद करा तो निक्षय मित्र ने कहा कि मैंने गोद लिया है टीबी पेशेंट को। मैं पूछा कि आप उसको कैसे मदद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एक न्यूट्रिएंट किट देते हैं हर महीने, हम महीने में एक बार कॉल करते हैं कि सरकार फ्री मेडिसिन देते हैं, आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो वो पूछताछ कर लेते हैं। टीबी मुक्त हो गए तो कोई व्यक्ति उसको छोटा मोटा काम धंधा रोजगार दे देते हैं। तब जाके ये 40 कंट्री और स्टॉप टीबी प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन द्वारा चल रहा है। ये बोर्ड का चेयर इंडिया है, यानी कि मैं चेयर हूँ। तो यूनानिमसली वाराणसी घोषणा पत्र डिक्लेयर हुआ। एक घोषणा पत्र में, डिक्लेरेशन में उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया ने कहा है देश टीबी हारेगा देश जीतेगा। अभी हम को लेते हैं, टीबी हारेगा दुनिया जीतेगी। उसके लिए इंडिया का मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, सार्वत्रिक स्वीकार किया गया है। ये सब चीज़ एक होलिस्टिक अप्रोच के नतीजे से निकलता है। तो इंडिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है होलिस्टिक अप्रोच वाली, वो स्वाभाविक तौर पर नॉट ओनली फॉर G20 कंट्री बट मैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाता हूँ, दुनिया के कई कंट्री के साथ बातचीत होता है। तो इंडिया जो एफर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया का एफर्ट विशेष इसलिए है, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, सोशल और इकोनॉमिकल नंबर ऑफ क्लास, बीच में भी हम सक्सेसफुल हमारा गोल को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उसकी सराहना दुनिया में स्वाभाविक तौर पर होती है। मनसुख मंडाविया जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, हमारी ये मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो उसकी प्राथमिकता होती है ये स्वस्थ राष्ट्र बने। मैं आपकी स्वच्छता की मुहिम के साथ जुड़ता हूँ। ये आपकी मुहिम नहीं है, ये देश की मुहिम है, देश के लिए है, देश के द्वारा जानी चाहिए। और देश के द्वारा चलाने के लिए आप भी पार्टनर है, मैं भी पार्टनर हूँ, देश के हर नागरिक पार्टनर है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हर नागरिक इस मुहिम से जुड़े और देश को स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र बनाने में सहयोग दे। मनसुख मंडाविया जी, हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी। ये तो बात हुई कि किस तरह से मिशन स्वच्छता और पानी नेशन बिल्डिंग और बिहेवियरल चेंज लाने में भूमिका निभा रहा है। मिशन स्वच्छता और पानी के सीजन 3 की ये मुहिम आगे जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। If we kept our surrounding toilets clean, our health would be better. But is that a guarantee? Well, we would save ourselves from germs and diseases. I would say let's try it for ourselves and see. Come, join me in Mission Swachhata aur Pani by News 18 for a cleaner and healthier India. Healthy hum, जब साफ रखे टॉयलेट हर दम। Welcome back to all of you who are watching Mission Swachhata Aur Pani Season 3. This is a campaign to encourage good sanitation practices for a healthy India. Let us now go across to my colleague Kishore Ajwani, who's joined by a panel of experts on how to build a healthier nation. इस धरती पर जीवन के स्वच्छता और पानी दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं और स्वच्छता के प्रति जागरूकता से बनता है एक स्वस्थ देश। मिशन स्वच्छता और पानी का लक्ष्य है कि स्वच्छ टॉयलेट देश के हर नागरिक को एक्सेसिबल हो, क्योंकि इससे ही बनेगा एक हेल्दी इंडिया, अमृत काल की तरफ बढ़ता हुआ एक प्रगतिशील देश। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर यही है हमारी आज की चर्चा का विषय, बिल्डिंग अ हेल्दियर नेशन। हमारे साथ हैं कुछ बेहद खास मेहमान, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्टनरशिप्स एसओए रेकिट रवि, एक्टर काजर अग्रवाल, डॉक्टर सुरभि सिंह जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में दिल्ली के स्लम्स में जागरूकता फैला रही हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर जैक सिम। लेकिन सबसे पहले रवि, ये बताइए, मिशन स्वच्छता और पानी, ये जो सफर है अभी तक का, इसमें इस बार जो नया चैप्टर है वो क्यों है? Thank you so much, Network 18.
First, I would like to put on record, like, our partnership with you is very valuable, and it's one of the very huge steps for the nation building. जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से बोला था, स्वच्छता के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हुए. ये टाइम आ गया जब टॉयलेट बिल्ड हो गए हैं इंडिया में. अब फोकस करने की ज़रूरत है. बिल्डिंग हो गया है टॉयलेट का, मेंटेन करना, यूज़ करना और ट्रीट करना. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सक्सेस का जो फैक्टर रहेगा वो ये रहेगा कि बिहेवियर चेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना. और आपके साथ में, नेटवर्क 18 के साथ में, हम ये हमारा एक जॉइंट है टू मेक श्योर वुमेन इन इंडिया, people who are from the marginalized section, people who are leaving behind, we don't leave actually anyone. और हम सबको साथ लेके चले तब का, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास तभी होगा जब सबका प्रयास होगा. और ये जो पूरा मिशन स्वच्छता और पानी है, ये टॉयलेट सैनिटेशन के एक्सेस की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, और साथ में आपका जो पानी जो है, पानी को अच्छे से जो है वो संचा के रखने की भी बात कर रहे हैं. तो नेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेशनल एजेंडा भी है, ये इंटरनेशनल एजेंडा भी है, और ये सबसे बड़ी ज़रूरत है. बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो ह्यूमन राइट है वो क्लीन सैनिटेशन और क्लीन वाटर भी है. तो SDG 17 है टोटल, उसमें एक SDG है 17 जिसका जो अभिप्राय है वो है पार्टनरशिप्स. तो पाठक जी, आपके विचार में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना और उसे एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना एक स्वस्थ भारत की दिशा में ये कैसे योगदान दे सकता है? देखिए, हर व्यक्ति को शौचालय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के नागरिकों को प्रदान किया. गरीब अमीर सभी लोग अब शौचालय में जाते हैं. शौचालय न होने के कारण खुले में शौच करते थे, गंदगी में मक्खियां बैठती थी. उन मक्खियों के माध्यम से जो जहरीले विषाणु थे वो खाने में आते थे, जिससे बीमारी पनपती थी, लोगों को हैजा होता था, अन्य बीमारियां होती थी. हमें उससे निजात मिली है. और जहां तक स्वच्छता की बात है, स्वच्छ शौचालय रखना है. जब हमारा शौचालय स्वच्छ होगा तो हमारे परिवार में, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के पास गंदगी नहीं पहुंचने पाएगी, जहरीले विषाणु नहीं पहुंचने पाएंगे, जिससे हम स्वस्थ रह पाएंगे. हम सबको हार्पिक और नेटवर्क 18 के इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए और अपने अपने घरों में सभी शौचालयों को सफाई विशेष रूप से रखनी चाहिए. और जो सामुदायिक शौचालय हैं उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए. जो जिम्मेदार लोग सभी सामुदायिक शौचालयों को अपने घर की शौचालय की तरह स्वच्छता मिशन में साफ रखें, जिससे हमारा पूरा परिवार, हमारा समाज स्वस्थ रह सके. हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम, ये नारा है आपका. मैं इस नारे को बहुत बहुत सम्मान करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और मैं भरोसा दिलाता हूं नेटवर्क 18 को कि हमारी पूरी सरकार स्वच्छता मिशन के तहत काम करते हुए लोगों को स्वच्छ पानी और इसके साथ साथ जो सफाई है उसका विशेष ध्यान रखते हुए लगातार अभियान चलाएगी. और हम आपके नारे के साथ हमेशा रहेंगे. काजल के पास जाने से पहले मैं डॉक्टर सुरभि के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि आप एक ऐसा प्रयास कर रही हैं बहुत से लोगों के साथ, जिसकी वजह से ये सैनिटेशन और हेल्थ का लिंक जो है शायद लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से पता चले. तो इस प्रयास, ये जो कोशिश है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू दिस? एक्चुअली बहुत सारे रीज़न हैं कि एक तो बीइंग अ फीमेल आपको समझ में आते हैं, आप समझ पाते हो कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, और सॉल्यूशन बीइंग अ डॉक्टर आप थोड़ा सा सॉल्यूशन बेस्ड या उससे होने वाली जो प्रॉब्लम है उससे फर्दर जो उसके मैं कहूँ कि फ्यूचर में जो उससे परेशानियाँ हो सकती हैं वो भी समझ पाते हो. तो वहाँ ये प्रॉब्लम समझ में है कि अवेयरनेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए. पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें वो लोग की प्रॉब्लम कहाँ है, और इससे ये नहीं करेंगे तो इससे होगा क्या. पहला स्टेप अवेयरनेस. अवेयरनेस. काजल, you are in a field where everybody is conscious about कि हेल्दी रहना है, फिट रहना है, और वो हेल्दी रहने को सिर्फ आउटवर्ड जो दिखता है वो बॉडी फिट दिखने वाली तक ही मानते हैं ज़्यादातर लोग. लेकिन सैनिटेशन से उसका कितना डायरेक्ट रिलेशन है, ये अवेयरनेस कैसे आएगी? आई थिंक सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. लाइक यू सेड, the clean toilets can lead to a better, your better health. Absolutely. And cleanliness is next to godliness. Our very own dear Mahatma Gandhi says this. I think that this couldn't be truer because it's just so important to prevent diseases. It's very important to have clean. And in my line of work, I travel so much that it's just very scary to walk into a place and not be sure whether I can use the restroom. And this is not just in
certain areas of our country, but majority. आपने कभी ऐसा फेस किया ऐसा प्रॉब्लम? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जहाँ पे I wanted to control myself because I did not want to use the bathroom, you know. So ऐसी चीज़ें तो बहुत हुई हैं, and like doctor said that it's business. It's very important, and I'm so happy that Network 18 is conducting this and is associated with this, because this is really the need of the hour, need of the day, and so important to all of us. तो ये जो अवेयरनेस की जैसे आपने बात की और काजल भी कह रही हैं, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें? क्लीन टॉयलेट्स अवेलेबल हों, एक्सेसिबल हों। जब मैं स्कूल में जो आपने अवेयरनेस का बोला था, तो ये पॉइंट में हमेशा लड़कियों के दिमाग में जो स्कूल में हम अवेयरनेस करते हैं कि अगर आप अपने लिए साफ टॉयलेट चाहते हो तो पीछे मुड़ के देखो कि आपने दूसरों के लिए कैसा छोड़ा है। तो जब तक इस पॉइंट को आप दिमाग में नहीं रखोगे तो आपको भी नहीं मिलने वाला। वो बिहेवियरल चेंज की जो बात कर रहे थे। So to me most important thing is the toilet etiquettes. You have curriculums on science, maths, literature, art, philosophy and everything. We have all grown up in India, and if you see a curriculum on right toileting, this is a big miss. I agree. Ranging, it's not just having a clean toilet. Understanding from the science point of view, a toilet is not clean जो कि visibly आपको clean दिखता है. हो सकता है कि उसमें still germs हो. Keeping it more cleaner, using the right kind of material to keep. Second thing is, if you have the dustbins in the loo, so making sure, the menstrual pads and other things are actually put there nicely. Third thing is also, you go to the boys' schools, you go to the girls' schools. Are the toilets safe? How safe the toilets are? That's also a very big question which needs... By safe, exactly what do you mean? Yeah, safer toilets for boys and girls mean there's a proper distance between the toilets, especially the urinals for the boys. And are the walls, big enough, high enough for the girls? And is there a proper ventilation? Children are growing up, they need to be educated on these subjects too. और vocabulary तो है ही नहीं कहीं पे भी, तो वो vocabulary build करना भी ज़रूरी है, toilet etiquettes build करना भी ज़रूरी है. First thing is asking the questions, right? Asking the right questions solve your 90% of the things. Correct. तो वो questions rightly पूछना ज़रूरी है. इसीलिए ये जो मिशन स्वच्छता और पानी जो हम नेटवर्क 18 के साथ में कर रहे हैं, I believe डॉक्टर साहब आपकी आवाज़, काजल आपकी आवाज़, youth will be actually engaged in this. They will be taking the pledges. Conversation start to ho, kam se kam. Exactly. Kahin na kahin So with our programs alone, we reached to around 24 million school kids across India. We have started it recently. And you will be hearing soon about the kind of work what we are putting together with the Sesame Street, with Raya, Chunky and the Muppets. And we are bringing, the Muppets at the center to communicate with the kids on the behavior changes, what needs to be there. It's very difficult to change the norms. And norms in urban, in the rural, in the tribal, and the peri-urban are very different. But what is important and interesting is we can change the behaviors. And we are seeing a rapid shift in the knowledge, attitude, behavior, and practice. So if the right knowledge is there, it will translate into changing practice. You will find more cleaner boys in the girls' toilet. You will find, boys and girls appreciating the value of the cleaner toilets. They'll be able to make the link. Monkey see, monkey do. हाँ, so you have to show it and then they do it. ये कैसे समझाएंगे आप अगर आपको अपने बच्चों को समझाना हो? After being a mum, I was always very careful about hygiene. It's always been of prime importance to me. But after having a baby of my own, I just make sure that everyone around washes properly. Everything is sanitized. Things are cleaned again and again. My baby's at the stage where he's now crawling and putting things in his mouth. So I tried my level best to make sure that the grounds are clean, there's less contamination, objects... Not just visibly clean. No, not just visibly clean, even otherwise, very clean. Using products which can help us keep our homes clean. Whichever strata of society you belong to, it does not really matter what means are available to you, but you can keep your surroundings clean and hygienic. And when it comes to my home and my child, I just hope that my child picks it up and learns from the examples around him. स्टार्टअप सोसाइटी की आपने बात की और आप जिस स्टार्टअप में काम कर रही हैं वहाँ पर
कैसे ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, क्योंकि उनके पिछली जनरेशन ने वो उस तरह से जिया नहीं है अपने आप को, तो वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं? सर जैसे ही सर ने बोला ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट हैं जो मैं भी हमेशा फॉलो करती हूँ। चेंज इन एटीट्यूड की पहले इस पॉजिटिविटी के साथ आए कि जो हम बात कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो नेगेटिव कि हम इस पे बात ही क्यों करें, वो गंदा साफ लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो उस पॉजिटिविटी को लेकर आना। सेकेंड नॉलेज से एम्पावर करना, फिर चेंज इन प्रैक्टिसेस, वो करें प्रैक्टिसेस को चेंज। तो जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, लोगों को वोकैबुलरी भी नहीं पता, तो हम उनको एक हेल्दी हैबिट्स देते हैं। जैसे हम पहली बार उनको एक पाउच देते हैं, एक छोटा सा पाउच हम अपनी तरफ से देते हैं, विच कैरीज एक पैड, एक पैंटी, क्लीन पैड, एंड उसके बाद एक पेपर, रफ पेपर, एक पेपर बैग और एक पेपर सोप। तो हम उनको बोलते हैं कि अब आपको पीरियड्स आएंगे तो आपको घर नहीं जाना है, आपको सीधे टॉयलेट जाना है, और ये आराम से पाउच लेके जाइए। आपकी पैंटी स्टेन हो गई है, आप पैंटी चेंज कीजिए, अपने पेपर बैग में रख के घर ले जाइए, वहाँ जाके वॉश कर लीजिए। आपको पैड चेंज करना है तो आप अपना पैड पेपर में रैप करिए, डस्टबिन में डालिए, नया पैड लगा लीजिए, और बाद में अपने हैंड वॉश और पेपर सोप ड्रायर रख के आप उसको। तो ये छोटा सा 5 आइटम्स देने से हम उनको एक हेल्दी हैबिट्स डालते हैं। अब वो भूलेंगे नहीं, एक बार उन्होंने वो यूज़ कर लिया ना, तो वो उनको हमेशा याद रहेगा कि इसको रिफिल करना है, कि अपने काम नहीं आया फ्रेंड के काम आया। तो ये छोटी सी हैबिट ना पहले धीरे से डालते हैं और उनको रियलाइज़ कराते हैं कि इस छोटी सी हैबिट्स आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो इससे हमारी अटेंडेंस वाला जो सर ने बोला ना, सिक डेज को हम काफ़ी हद तक कम कर पा रहे हैं। और जो काजल ने बात की, एज अ चाइल्ड शी सेड कि एज अ चाइल्ड इज अभी क्रॉलिंग एज में, जो अंडर 5 किड्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू इस कंट्री में डायरिया का है जी। उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? आपके इनिशिएटिव्स कैसे हेल्प कर रहे हैं? Thank you so much for asking me this question. And I really want to thank government of Uttar Pradesh, Pathak ji and Anandi Ben Patel madam. I to them and I spoke to them about India's situation and Uttar Pradesh situation on the under 5 diarrhea management. Both were very kind and they consented to launch the program with us. It's called the Diarrhea Net Zero program. The aim of the program is to save 100,000 kids' life. If you see worldwide, there are 3 countries which have the highest number of diarrhea cases. One is a neighboring country, Pakistan, second is Nigeria, and third is India. We are economically progressing, we are fundamentally changing, we are progressing in every way possible. It's very important, we don't have the lumpen development. And we develop also in terms of the health parameters of the kids. So this intervention reaches out to the kids under 5 in Uttar Pradesh in 13 districts. And this year, this intervention is going to reach to 26 districts in Uttar Pradesh. So it's the next stage now? Yes. And we started this whole intervention as an impact bond. We scaled it up from 1 district to 2, from 2 to 13, now 13 to 26. You will be witnessing it soon. And what exactly is this intervention? Yes. So this whole intervention is basically working on 7 pillars. The first pillar is basically the breastfeeding, which is exclusive breastfeeding for the kids under 5. Second intervention is the ORS, which is the oral rehydration solution, which should be WHO approved. Low osmolarity ORS needs to be given to the kids so that they don't die of dehydration. Third is making sure the zinc is available, the 14-day zinc treatment for the kids. Fourth is safe drinking water is available. Telling the population groups about boiling, filtering the water in a way so that the water is not contaminated. Even telling them like why you need a long stem handle in the villages to take out the water rather than putting the hand inside and taking the water. Yeah. Then the step is basically making sure the safe, clean drink, the toilets are available. Last but not the least, the rotavirus vaccination, which is a national program of Government of India. By putting all these strategies together, this is a part of the WHO 7-point plan, making sure everything is in tandem and we are able to put, right kind of people on this task and making sure we are able to save the lives. There is a whole strategy of prevent, promote and treat. So we are working on the overall programming where you have the prevention messages, you have promotion of good health messages. Along with that, you have the treatment also, which government also focuses a lot, which is the rotavirus vaccination. This is the whole program. And how's Reckitt building a healthier India by sanitation? Very interestingly, so we reach out to around 24 million school kids through our interventions. School kids? School kids. That's one pillar. Second pillar is we work with the World Toilet Colleges. We had the first World Toilet College which we started
with Swami Chidanand Saraswati ji and Rishikesh. Okay. In Parmarth Ashram, under the flagship program of Global Interfaith Wash Alliance and Racket. From there, we took our program to Maharashtra. Fadnavis ji was, really appreciative of our work, and he said, like, you should also put a toilet college in Maharashtra. We made the second one in Aurangabad in Maharashtra. After that, there was no looking back. Last year, we actually reached to Leh also, and we have now 15 world toilet colleges across India, where we have already trained 75,000 plus sanitation workers, 50% being women sanitation workers, and personal disposable incomes of the sanitation workers trained in the world toilet colleges has become 2x. And they are no more in the business of touching the human excreta by hand. We are training them on various aspects. I'm very proudly telling you this thing, like a lot of private sector companies, even our competitors, public sector companies, and corporations, mixed bag of everyone, and the placement rates are around 99% plus. And we are, announcing this year, on this show, it's a good opportunity for me. We are doubling our impact by reaching out to 100,000 sanitation workers more this year by the virtue of our 15 world toilet colleges. Great. Along with that, we're also starting an all-women world toilet college. You'll be hearing soon, and we are going to announce it together. All-women world toilet college. All-women world toilet college, where you will be having only women sanitation workers. And we're trying to open it through the NFTs, which is the non-fungible tokens, raising money for them, and making sure they're a part and parcel of the new India, the growing India, where they are also financially independent. Also, there's a very small nugget I want to just share, first time in Patiala, there's a World Toilet College in Patiala also, Harpic World Toilet College. 100 kids of the sanitation workers, they got admission in the schools, public and private. Always there was a resistance to give them the admissions in the schools because they are still considered untouchable to some extent. Yes. The team there, Rashid is there, Virender is there. I must put on record, like these guys have moved extra mile, made sure the kids get the admission, because always there's a vicious circle of poverty. There is a vicious circle of actually taking the people out of this whole gamut of things and making sure if the kid is educated, and proudly 80% plus are girls. And if you educate a girl, you're educating a family. And that's the first team of ours from the 15 world toilet colleges which have moved quantum leap, and they made sure like the girls get the admission in the schools. And this is the first generation actually who is going to the schools now. Jack, you've been instrumental in the establishment of World Toilet College in India by Harpic, which works for the upliftment and dignity of sanitation workers. How do you see WTC's growth over the years? I'm very proud of our partnership with Harpic, with Racket, and because especially with the leadership of Ravi Bhatnagar, who is running it as our partner. You see, with World Toilet College, you can train skilled professional workers, and then we can develop these skills that give them permanent job that is demanded by the hospital, shopping center, by the office building, and all these people who used to be either jobless or casual worker, they start to become professionally employed, respected, because they know how to do their job well, with pride. When we teach people to be toilet cleaners, we also teach them that they are as important as doctors, because the doctor cure a person when he becomes sick. The sanitation worker prevent the person from being sick. And what would you give today from this mission Swachhata Aur Pani platform to people who want to bring a change in the world and spread this message of clean toilets and healthy nation? Today is World Health Day. And how do you make 1.4 billion people healthy? The cheapest way is to prevent them from being sick. And the best way to prevent them is hygiene and proper sanitation. So start doing proper sanitation and go up the technology ladder. Prevent
people from being sick, is the cheapest medicine in the world is the toilet. लेकिन ये सब इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर काजल, बहुत लोगों ने आपसे फिटनेस मंत्र पूछे होंगे, हाइजीन मंत्र अगर आपको देना हो टू योर ऑडियंस, टू योर फैंस. Start very young. Start training your children very young. My baby is 11 months and is already sitting on a potty seat, already washing his hands and learning the whole drill, learning the steps. So monkey see, monkey do is very relevant. Children will observe and learn from parents first. They will learn at home first. So the way we all keep our homes clean, it's very important to keep our surroundings and consequently the rest of our country clean. डॉक्टर, आपकी नज़र में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है आज के दिन के लिए? मैं अगर कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कि इसको इंटरनलाइज करें कि किसी और के लिए नहीं होना है, खुद के लिए होना है. एंड फाइनली रवि, योर मैसेज ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे. So for me, nation comes first. And if this nation should be a healthier nation, happier nation, and that's only possible जब हम टॉयलेट हरदम रखें clean. Because there is a strong linkage between the साफ टॉयलेट्स और आपकी हेल्थ. धन्यवाद. थैंक यू. तो मुद्दा ये है कि हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम. जी. थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि, काजल एंड रवि. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर मिशन स्वच्छता और पानी से जुड़ने के लिए. हमारे साथ इस खास अभियान में बने रहिए. हेल्दी रहें हम जब मिलकर साफ रखें टॉयलेट्स हरदम. मिशन स्वच्छता और पानी की ये मुहिम जारी रहेगी. Absolutely, we are going to head into a short break, but कहीं जाइएगा मत. We're back in a short bit. When we drive advocacy for toilet appropriate behavior and sustainable sanitation practices, we are looking to achieve objectives: cleanliness, good health, inclusivity and accessibility. However, at the core of all these efforts lies one crucial enabler: water. Without saving water and making it accessible, our efforts towards promoting hygiene and sanitation practices would be in vain. So join Mission Swachhta Aur Pani by News 18 and Harpik, a Jan Andolan for sustainable sanitation and clean water to promote a healthier future for ourselves and our country. आज वर्ल्ड हेल्थ डे है. आइए इस दिन पर प्रण लें. स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए इस जन आंदोलन को अब हर घर तक पहुंचाना है. और अब सुनते हैं मिशन स्वच्छता और पानी के लिए इंडियन सैनिटेशन कोalition की चेयर डॉक्टर नैना लाल किदवाई जी का मैसेज. Adequate sanitation, hygiene and safe water are critical for good health and social development. I'm truly glad to see that Network 18 and Harpik are back with Mission Swachhta or with a view to developing awareness for sustainable sanitation and clean toilets for all. Come join me on this mission towards a healthier India on World Health Day. मिशन स्वच्छता और पानी. हेल्थी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम. Thanks a lot, Naina, for that inspirational message and for your continued support to Mission Swachhta Aur Pani. It's been wonderful to work together with you. Children are the future of any nation and considered to be partners and key players in achieving change. So, Mission Swachhta Aur Pani is to talk to some very special children. These are children who are spreading the message of Swachhata to the nation. It's now time to go across to Varanasi, where my colleague Maria Shakil is at the primary school in Naror, which was awarded a Swachh school and was visited by none other than the architect of the Swachh Bharat Abhiyan, Prime Minister Narendra Modi. Maria, over to you. Thank you. Any change has to begin at the grassroots, and that's where the role of primary schools come in. I am here with a very special teacher today. Shilpa has travelled all the way from Bombay to be with us in this shala. इससे पहले मैं बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस करूं. शिल्पा शेट्टी, who has lived the mantra स्वस्थ रहो मस्त रहो. लेकिन पहले ये बताइए कि पाठशाला की शुरुआत की जाए. बिल्कुल. और जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए और सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं. तो आज ऐसे करते हैं,
हाथ ऊपर बच्चों। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए चलिए शिल्पा, शुरुआत करते हैं। शिल्पा के साथ बैठे हैं दो और टीचर्स। एक हैं नोडल टीचर संदीप गौतम जी, जिन्होंने ये पूरा विद्यालय जो है प्राथमिक विद्यालय नरोर में उन्होंने रौनक की है। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और उनके साथ हैं प्लान इंडिया की डॉक्टर कोमल गोस्वामी, जिन्होंने सैनिटेशन हाइजीन पे बहुत काम किया है। लेकिन हम यहाँ क्यों हैं? इस विद्यालय की क्या खासियत है? इस विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला था। संदीप गौतम जी, मुझे ये बताइए कि ये जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार होता है, ये कब शुरुआत हुई उसकी और इसको मिलने का क्या क्राइटेरिया है? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो है 2014 से शुरू हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस विद्यालय का विजिट किए थे 17 सितंबर 2018 को। और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हमारे विद्यालय को इसलिए मिला कि शासन के तरफ से, सरकार के तरफ से, मोदी जी की तरफ से 19 पैरामीटर तय किए गए थे। उन सभी 19 पैरामीटर को जब मैंने संतृप्त कर लिया तो उस संतृप्तता पे हमारे विद्यालय को जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला। एंड शिल्पा, गुड सैनिटेशन इज लिंक्ड टू गुड हेल्थ। बिना साफ टॉयलेट के और एक हाइजीन बिहेवियरल चेंजेस के गुड हेल्थ नहीं हो सकता। उसके बारे में बताइए, बच्चों को समझाइए। और अभी उन्होंने आपको वेलकम भी किया था अपनी पेंटिंग्स के साथ। इनके पेंटिंग से बहुत क्लियरली मुझे समझ आ गया है कि उनको समझ है स्वच्छता को लेकर कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी शिक्षा, आपका नाम शिक्षा ही है ना? आप खड़े होके बताइए हमें, आइए, क्या बात कर रहे थे हम स्वच्छता को लेकर कि बाथरूम क्यों साफ रखना चाहिए हमें? क्योंकि वो कीटाणु उसमें अगर कोई जा रहा है लैट्रिन करके वो नहीं बहा रहा है तो उससे कीटाणु हो रहा है और आदमी बहुत सारे बीमार हो जा रहे हैं। एग्जैक्टली और अगर बीमार होता है बंदा तो क्या होता है? वो काम नहीं कर सकते थे और हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। तो cleanliness is not just equal to godliness. That's something that we learnt. जब हम स्कूल में थे तो हमको पढ़ाया जाता था और मैं हमेशा सोची थी ये क्या है हमें मॉरल साइंस में cleanliness is equal to godliness, cleanliness is equal to health. Now I say that cleanliness is also equal to wealth. आप जब आप बीमार पड़ते हो तो आप ऑब्वियसली काम पे जा नहीं पाओगे। आप बीमार पड़ोगे, आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी लो हो जाती है और ऑब्वियसली द वर्क आउटपुट इज़ सो मच लेसर। सो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? तो जहाँ पे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए वहाँ पे क्लीनलीनेस का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। And Shilpa, catch them young and teach them of course at this age. बिल्कुल। और इसीलिए संदीप जी, जो आपने 19 पैरामीटर्स की बात, तो उसमें किस तरह के कार्यक्रम में क्या समझाया जाता है बच्चों को? और जो इंडियन टॉयलेट्स है और वेस्टर्न टॉयलेट भी यहाँ है। पहले तो मैं बच्चों को यह बताता हूँ कि शौचालय एकदम साफ है। बच्चे किसी भी तरीके से उस शौचालय को गंदा न करें। उसमें किसी भी प्रकार के कपड़े या कागज़ न लेके जाएं, जिससे शौचालय अगर उसमें वो छूट जाएगा तो शौचालय जो है जाम हो जाएगा। और बच्चे जैसे शौचालय करते हैं तो उसमें जो वेस्टर्न टॉयलेट, जो कमोड वाले टॉयलेट हैं, उसमें 2 बटन बने हुए हैं। उस बटन को बच्चे पुश करते हैं। और इंडियन टॉयलेट है उसमें पानी लेके बच्चे जाते हैं और जैसे ही शौच करते हैं उसके बाद उसमें पानी को बहा देते हैं और सीट जो एकदम क्लीन हो जाता है। इस तरीके से हम बच्चों को जो है बताते हैं। आप ही का टेस्ट ले लेते हैं सर। चलिए बच्चों, ये बताइए हमें कि जो 2 बटन होता है कमोड में, वो किस लिए होता है? 2 बटन किस चीज़ के लिए होता है? किसको पता है? फ्लश करने के लिए होता है। और बाथरूम को साफ क्यों छोड़ना चाहिए? टॉयलेट अगर इस्तेमाल करें तो साफ क्यों छोड़ना चाहिए? क्या जवाब? जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, गंदगी अगर हम छोड़ेंगे तो कोई मक्खी बैठेगी, वही किसी खाने पर खाना खाएगा तो बीमार हो जाएगा।
तो आपने तो पूरा साइकिल समझा दिया, यही है शिल्पा, आप देख रही हैं। यहाँ से हमें सीख मिल जाएगी लेकिन बहुत अच्छी बात छेड़ी आपने, क्योंकि हम लोग बाथरूम की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं। टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथों को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। पूरा हैप्पी बर्थडे एक बार सिंग कर लो, इतने टाइम तक सफाई होनी चाहिए। एक बार करें, ऐसे करिए, सोप लीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, कोई भी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, कोई भी हैप्पी बर्थडे टू यू। बंद। इतना टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि बाथरूम यूज़ किया, अंदर गए करके निकल गए। बहुत लोग ऐसे करते हैं ना, कितने ऐसे करते हैं, हाथ ऊपर। अब नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सीख है, क्योंकि अगर वो कीटाणु आपके हाथ में रह जाते हैं तो फिर आप उसी हाथ से खाना भी खाते हो, है ना। जब आप बिल्कुल, और वो आपके पेट में जाएंगे, और जब आपके पेट में जाएंगे कीटाणु तो क्या हो जाता, ठीक है। और स्पेशली अभी बाथरूम की बात हमने कर ली, लेकिन जब अगर किसी को कोल्ड हुआ है, समझो कोई खांस रहा है, ठीक है, कोई स्नीज़ कर रहा है, तो कैसे स्नीज़ करते हो और कैसे खांसते हो आप लोग? हाथ के साथ ना एक नया तरीका सिखाती हूँ मैं। ऐसे मत खांसिए, ऐसे यहाँ पे खांसिए। चलिए सब दिखाइए यहाँ पे। तो एक नई सीख है ये आज, ठीक है। ये चीज़ें मैंने अपने बच्चों को सिखाई है। And that is where the role of Komal comes in. Dr. Komal, education, awareness. Reckitt has been running a sanitation literacy program. What is the nature of this curriculum and what do you teach the children? एब्सोल्युटली। सो हमारी शुरुआत 2014 में हुई थी, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। अब उस टाइम पे एक लहर सी दौड़ गई थी पूरे देश में कि हर कोई झाड़ू लेके, हाथ में मग्गा लेके सड़क साफ़ कर रहा है, अपना टॉयलेट साफ़ कर रहा है। हमने उस टाइम पे एक चीज़ सोची कि बड़े लोग तो कर ही रहे हैं, बट जैसे अभी शिल्पा जी ने बोला कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इतना स्मार्ट हो गए हैं कि अगर हम उनको अभी से, जब 1 या 2 साल 3 साल के होते हैं, प्राइमरी के अंदर एंटर करते हैं और उनको स्वच्छता की अहमियत समझाएंगे, तो वो एक बहुत ही सस्टेनेबली सालों साल उनके साथ जाएगा। तो तब हमारा शुरुआत हुई स्वच्छता की पाठशाला, जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, हेल्दी हम रहेंगे जब टॉयलेट रहेंगे हरदम क्लीन। तो ये जो एक चीज़ है, ये 2014 से पिछले 8 साल से हम एक सैनिटेशन करिकुलम के थ्रू अपने बच्चों के अंदर, जैसे वो बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या एक्टर बनने के लिए अपना करियर परस्यू करते हैं, उसी तरीके से स्वच्छ रहने के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए उनका एक शुरुआत हो जाए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उस पर अब बहुत खुल करके चर्चा हो रही है। इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर यंग गर्ल्स टू हैव कम्युनिकेशन अराउंड इट। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। मेरा बेटा जो है 11 साल का है और मैंने ऑलरेडी उसको समझा दिया है स्कूल में क्योंकि अब टुडे द गर्ल्स आर मच्योरिंग मच अर्लियर देन वी डिड इन आवर टाइम। तो उनको पहले से ही समझाना कि थोड़ा सा सेंसिटिव होना, सेंसिबल होना लड़कियों के साथ जो उनके साथ पढ़ रहे हैं, और जैसे टीचर्स वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रभाव मुझे देखने ऑलरेडी मिल रहा है इन पे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीछे देखो, आपने सुना है एक वर्ड है पीछे देखो, पीछे देखना चाहिए क्योंकि आपके बाद जो आएगा बाथरूम में वो साफ बाथरूम देखे। वो क्यों ज़रूरी है कि आप जब बाथरूम छोड़िए या आप जब टॉयलेट छोड़िए तो साफ रहना चाहिए? क्योंकि वो गंदा होगा तो किसी को आने की इच्छा नहीं करेगा, मन नहीं करेगा। जैसे वो कोई आता है जाता है तो उसका मन नहीं करेगा कि करता रहेगा। क्योंकि आप भी चाहती हैं कि साफ बाथरूम मिले। यस। तो आपको छोड़ना पड़ेगा पहले, साफ धो करके अच्छे से। आप करती हैं ये? यस मैम। तो आप लोग क्या वो बाहर जा कर के बाकी बच्चों को बताते हैं, अपने घर में जा कर के अपने परिवार वालों को बताती हैं? हमने बताया कि अब बाहर जाना बंद कर जाए और घर में शौचालय रखें और उसी में जाया करें। घर में शौचालय बने, घर में शौचालय बने और साफ सफाई रखें। तो घर में शौचालय बन गया? यस मैम। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि संदीप जी, दिस इज़ अ गुड चेंज दैट व्हेन यू एजुकेट देम
दे आर एजुकेटिंग अ न्यू जनरेशन, अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, बाहर जाकर के बाकी बच्चों को बता रहे हैं। तो पेरेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम चिल्ड्रन। शिल्पा, आप खुद बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपके योगा के वीडियोस आप हमेशा रेगुलरली इंस्टाग्राम पे डालती रहती हैं और वर्ल्ड योगा डे में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती हैं। आपके 3 मंत्रा क्या हैं गुड हेल्थ से रिलेटेड? बहुत सिंपल रखती हूँ मैं। अच्छा खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, बहुत सारा पानी पियो और अच्छा सोचो, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो फिर आप अपने टॉयलेट को क्लीन रखेंगे, और टॉयलेट क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर कीटाणु जो है वो फैलते नहीं हैं, है ना। तो ये सीख बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। खाओ पियो मस्त रहो टॉयलेट साफ रखो और 3 मंत्रा हाइजीन मेंटेन करने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आज मैं बोलूँगी बच्चों को। जब टॉयलेट यूज़ करते हैं तो जब आप ख़त्म करते हो टॉयलेट के लिड को बंद करके फिर फ्लश करिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत बारी मैं लोगों को देखती हूँ वो लोग लिड बंद करके फ्लश नहीं करते। जो कीटाणु होते हैं जो टॉयलेट में और पानी में होता है वो छींटों की वजह से वो बाहर निकलते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है हाइजीन के लिए, टॉयलेट्स में स्पेशली। हाथों को साफ़ करना एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए, और जब खांसते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे खांसे, हाथ में नहीं। शिल्पा, इट्स वर्ल्ड हेल्थ डे, क्या मैसेज देंगी आप सबको? I think when we say cleanliness is next to cleanliness, we have to also practice it and not just preach it. Dr. Goswami, what next in this curriculum? How do you ensure that it becomes a mass movement like we are seeing it? अब आगे फॉरवर्ड की अगर बात करेंगे तो जन आंदोलन ऑलरेडी शुरू हो गया है, राइट। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जन आंदोलन शुरू किया और स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया। आई थिंक अब जो नेक्स्ट ज़रूरत है और जिसकी तरफ हम बढ़ भी चले हैं वो है जन भागीदारी। आंदोलन बड़े बड़े लोगों ने शुरू कर दिया, अब जन भागीदारी का मतलब है कम्युनिटी जब साथ में होकर चलेगी। जन आंदोलन से जन भागीदारी, और उसमें इन बच्चों का ज़्यादा रोल है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। शिल्पा, क्या बोलेंगी अंत में आप इन बच्चों को? ये आदत, और ये बहुत अच्छी आदत है, और आदत जो होती है ना उसको बनाने में सिर्फ 21 डेज लगते हैं, 21 दिन लगते हैं एक आदत को बनाने में। तो 21 दिन कंटिन्यूसली कोई भी आदत अच्छी हो बुरी हो आप कंटिन्यूसली करें तो वो फिर जहन में बैठ जाता है। तो आज से आप प्रॉमिस करिए कि इस आदत को आप बनाएंगे, ठीक है। टॉयलेट्स को साफ रखना, हाथ धोना, जब आप खांस रहे हैं तो एल्बो में खांसे, ठीक है। चलिए, हम लोगों का मिशन क्या है? हेल्दी हम हेल्दी हम। शिल्पा, आपका मंत्रा? मेरा नॉर्मली ये मंत्रा होता है कि स्वस्थ रहो मस्त रहो, लेकिन आज क्योंकि अभियान है स्वच्छता और पानी को लेकर, आज मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। मैं कहूंगी स्वच्छ रहो मस्त रहो। With that, Shilpa, really thanks to you. And thank you to all the panelists who are joining us, and a big thank you to all the students. Back to the studio now. बहुत बहुत धन्यवाद मारिया। कितनी आसानी से इन बच्चों ने हमें स्वच्छता के बारे में जागरूक किया है शरीर। और ख़ास धन्यवाद हमें हमारी ख़ास मेहमान शिल्पा शेट्टी जी का भी करना पड़ेगा, जिन्होंने इन बच्चों को गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के जरिए हेल्दी रहने के नुस्खे दिए। हम सबको ज़रूरत है इन बच्चों से सीखने की और अपने आसपास अपने टॉयलेट्स को साफ रखने की। ये जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, क्योंकि उसी से बनेगा एक स्वस्थ देश, एक हेल्दी इंडिया। यही संदेश हम इस कैंपेन के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सरीन, कि हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। बिल्कुल आनंद। एंड एज वी बीन पॉइंटिंग आउट, सैनिटेशन वर्कर्स आर द बैकबोन India's cleanliness ecosystem. They painstakingly ensure that our cities are clean, with an aim to upskill these invisible warriors and to provide support to their families. Harpit Anand has set up the World Toilet Colleges across the country. आइए अब चलते हैं वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद, जहां मेरी सहयोगी सबीना देशमुख मौजूद हैं सैनिटेशन वर्कर्स के साथ। ओवर टू यू सबीना। जी हां आनंद, इस वक्त आनंद न्यूज 18 नेटवर्क और हार्पिक अभियान का मिशन स्वच्छता और पानी लगातार आगे बढ़ते हुए पहुंच गया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद, और हम मौजूद हैं, आपको बता दें, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज
बाद में, जिसका एक खास मकसद है। कहते हैं ना कि किसी भी मिशन से जब हम जुड़ते हैं तो ऊंचाइयां अपने आप यहाँ पर तय होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी क्या कुछ ज़रूरत है, क्या मकसद इस पूरे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का है, वो ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन ये भी ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे 2 अक्टूबर 2014 जब वो तारीख, वो साल ये देश का रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, यानी कि खुले में शौच से मुक्त करवाना, खुले में टॉयलेट से मुक्त करवाना। ये सबसे खास मकसद इसका रहा, जिसमें आम से लेकर खास हर किसी का भरपूर साथ यहाँ पर मिला, जिसमें रैकेट ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और साल 2018 में वो टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद की स्थापना की गई। हालांकि बाकी राज्यों में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद है और खुद यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे साथ इस वक्त देश के रियल हीरोज मौजूद है, यानी कि वो असली नायक मौजूद है जिन्हें सैनिटेशन वर्कर्स कहा जाता है, यानी कि स्वच्छता कर्मचारी कहा जाता है, और जिनके बिना हम और आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सुनील जी, आपका भी सपना क्या कुछ ऐसा रहा जिसमें ट्रेनिंग सेंटर ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस कॉलेज सेंटर ने निभाई? बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मेरा नाम सुनील कपूर सिंह सिरसवाल है, मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ और मैंने 2018 से वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से मेरी पूरी चेंज हो गई मैडम जी। आज मैं जो हूँ बाहर मान सम्मान से जी रहा हूँ और लोग मुझे आज पहचानते हैं मेरे नाम से, मेरे कॉलेज के नाम से पूरे में पहचानते हैं। हाँ, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, अरे वहाँ से ट्रेनिंग लिया। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे रतन। पहले मुझे सफाई कर्मचारी के बारे में, इसमें बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद में मुझे मेरे में जो बढ़ता हुआ है तो वो टॉयलेट कॉलेज के जरिए हुआ है। आनंद, यही तस्वीर दिखाने की कोशिश आज हम अपने मिशन के जरिए कर रहे हैं, मिशन स्वच्छता और पानी। आगे बढ़ते हुए इस वक्त औरंगाबाद के इस वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में मौजूद है, जहां से मुझे लगता है यकीनन बहुत बड़ी तस्वीर आज पूरे देश और दुनिया के सामने गई होगी। तो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से सबीना सैनिटेशन वर्कर्स के साथ जुड़ी हमारे साथ यहाँ इस मुहिम में। एक बार फिर सबीना के पास चलते हैं और हिस्सा बनते हैं एक लाइव क्लास का, जहां इन सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है। जी आनंद, जैसे हर किसी की जिंदगी के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही इन सैनिटेशन वर्कर्स की जिंदगी के भी दो पहलू हैं। क्या वो पहलू हैं? इससे पहले हिस्से में भी हमने आपको बताया था इनके सामने क्या चुनौतियां यहाँ पर आई और किस तरह से इस कॉलेज ने, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद ने उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर लाया। लेकिन इसमें यहाँ मिलने वाली ट्रेनिंग सबसे हो जाती है, क्योंकि ये 5 दिनों की जो ट्रेनिंग है वो यकीन मानिए हर एक दिन के साथ इन्हें सशक्त करती है, मजबूत करती है, सुरक्षित करती है और साथ एक सम्मानजनक जो जिंदगी है वो यहाँ पर दिलाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के प्रोग्राम मैनेजर जितेंद्र सलिल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए मैं आपको हमारे ट्रेनिंग सेंटर दिखाता हूँ कि जहाँ पे अभी लाइव ट्रेनिंग हो रहा है। तो हमने ये जो 5 दिन के जो ट्रेनिंग है, छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए हैं कि जो एनिमेशन के वीडियोज़ इससे काम करते हैं। तो यहाँ पे ये अभी ट्रेनिंग चल रहा है, तो यहाँ पे ये लोग आने से पहले इनको मोबिलाइज़ करना पड़ता है। ये हमारे मोबिलाइज़र है रविंद्र वासनिक, तो ये यहाँ पे आके लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं। सफाई कामगार उसको भी 10-20 लोगों को ये नौकरी दे रहे हैं। ये जो उसमें परिवर्तन आया है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की वजह से उसके लाइफ में परिवर्तन आया है। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, जागरण पहल के डायरेक्टर है साहिल तलवार जी। बहुत बहुत स्वागत है साहिल जी आपका। इसी सवाल के साथ शुरुआत करेंगे, साल 2018 से लेकर अब तक का वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का ये पूरा सफ़र। देखिए, हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज 2018 में इस सोच के साथ हमने शुरू करा था कि जहाँ पे हम स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं, जहाँ हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ओवरऑल गोल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे टॉयलेट बिल्डिंग की बात हो रही है, टॉयलेट यूसेज की बात हो रही है, बट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था टॉयलेट मेंटेनेंस का, जिसके लिए ये सैनिटेशन वर्कर्स हमारी ओवरऑल बैकबोन है। और इनकी जो डिग्निटी है, इनको जो सम्मान देना है, वो एक कॉर्नरस्टोन है ओवरऑल स्वच्छ भारत मिशन का, ओवरऑल एक मेंटेनेंस एजेंडा का। तो ये सोच के साथ हमारी लीडरशिप ने ये डिसाइड करा कि बहुत ज़रूरी है कि हम हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज को इनिशिएट करें। और आज स्वच्छता कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अगर ये हमारे ओवरऑल एक इन्वायरमेंट से एक्सक्लूड हो जाते हैं तो मुझे लगता है प्रॉब्लम हमें आएगी। तो हम उनको सर्व कर रहे हैं अपना काम आसान करने के लिए, ना कि उनको एक बेटर लाइवलीहुड देने के लिए।
सो यही मेरा एक की मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए आपका। तो जाहिर सी बात है, समाज का वो तबका जो कि सबसे ज़्यादा सम्मान का हकदार है, उसे सम्मान दिलाने में, सशक्त करने में, उसे उस स्तर तक पहुंचाने में जो कि उसका अधिकार है, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद अपनी वो भूमिका निभा रहा है जिसकी सराहना करना वाकई हर किसी के लिए ज़रूरी हो जाता है। Sabina, thank you so much for joining us today, and it is very important for all of us to recognize and appreciate the role that sanitation workers play in keeping the country clean and healthy. Anand, बिल्कुल सही कहा आपने शिरीन। स्वच्छता और पानी के सीजन 3 की ये मुहिम आगे जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। Your health is connected to your hygiene, but hygiene isn't only about brushing your teeth, bathing and cleaning up. Using a clean toilet is also critical for good health. For a healthier India, we have to focus on both cleanliness and disinfection. Come join me in Mission Swachhata Aur Pani by News 18 and Harpic to work towards access to clean toilets for all and sustainable sanitation. Healthy hum जब साफ रखे टॉयलेट हर दम। welcome back to our World Health Day special presentation, Mission Swachhata Aur Pani सीजन 3। और अब मिशन स्वच्छता और पानी में हमारे साथ जुड़ रही हैं एक बेहद खास शख्सियत। स्वच्छ भारत अभियान की ये हमेशा से पुरजोर समर्थक रही हैं। भले ही गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की हैसियत से, या फिर अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। जी हाँ, आप इशारा समझ गए। आनंदीबेन पटेल जी हमेशा से स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी रही हैं। बिल्कुल आनंद। Today as we proudly move into our 3rd season, Patel, the governor of Uttar Pradesh, has sent us a very special message. Listen in. विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर न्यूज़ 18 नेटवर्क, हार्पिक एवं रिकेट संस्था द्वारा आयोजित मिशन स्वच्छता और पानी विषयक कार्यक्रम में उपस्थित देवी और सज्जनों, आप सबको नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 नेटवर्क और हार्पिक संस्था को मिशन स्वच्छता और पानी का 3रा सीजन लॉन्च करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। यह स्वच्छता और स्वच्छ पानी के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। खुद को स्वच्छ रखने और बीमारियों को दूर रखने के लिए साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। स्वच्छ भारत एक स्वस्थ भारत का विजन है। भारत को खुले में शौच से मुक्त के लिए करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है वो अभूतपूर्व है। इस सफलता में देश के हर का योगदान है। बेहतर स्वच्छता और स्वच्छ शौचालय की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल पर राज्य का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामच्छा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाया गया, ताकि शहर की स्वच्छता में सभी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मैं उत्तर प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया से नेट जीरो मौत का टारगेट हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में रिकेट द्वारा शुरू किए गए डायरिया नेट जीरो कार्यक्रम की सराहना। शौचालय को साफ सुथरा रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और लोगों को शौचालय के इस्तेमाल और शिष्टाचार के बारे में शिक्षित करके बदलाव लाने के लिए मैं रिकेट और न्यूज़ 18 नेटवर्क को बधाई देती हूँ। आपकी टैगलाइन हेल्दी हम जब साफ रखे टॉयलेट हरदम बहुत ही उपयुक्त है। मैं इस टैगलाइन की भी सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि यह वाक्य जन सामान्य को प्रेरित करने में कारगर भूमिका निभाएगा। मेरा मानना है कि स्वच्छता हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। आइए मिशन स्वच्छता और पानी से जुड़े और साथ मिलकर एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत का निर्माण करें। अंत में मैं एक बार फिर न्यूज़ 18 नेटवर्क, हार्पिक एवं रिकेट संस्था के इन सामाजिक प्रयासों की सराहना करते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के घाटों की नगरी बनारस।
ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और हर साल करीब 7.3 करोड़ टूरिस्ट से ज्यादा यहां आते हैं। ऐसे स्वच्छता एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी भैया जी मौजूद हैं बनारस के मशहूर 80 घाट पर और उनके साथ हैं हार्पिक द्वारा स्थापित वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के कुछ सैनिटेशन वर्कर्स जो शहर के टॉयलेट साफ रखने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और साथ ही हैं कुछ स्वच्छता प्रहरी जो हार्पिक के सेफर टॉयलेट्स फॉर ऑल कैंपेन का हिस्सा हैं और अंडर 5 किड्स में डायरिया की रोकथाम में जुटे हुए हैं। आइए बनते हैं हिस्सा एक वाराणसी चौपाल का प्रतीक त्रिवेदी के साथ। माँ, मैंने तुम्हारे तट पर आकर पवित्रता के तो सारे बिंदु पा लिए, लेकिन इस प्रवाहमान गति ने कुछ बिंदु भी छोड़ दिए। प्रश्न मेरे मन में तमाम सारे घूमते हैं और आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर माँ मैं तुम्हारे तट पर आया हूँ। स्वच्छ भारत हो सुंदर अभियान का धन प्रधान बना। स्वच्छ भारत हो सुंदर अभियान न्यूज़ 18 प्रेजेंट मिशन स्वच्छता और पानी। तमाम सारे वॉलंटियर्स, तमाम सारे कार्यकर्ता और इस मिशन से जुड़े वो तमाम सारे लोग आज माँ तुम्हारे तट पर मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला जोड़ें, लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन लोग जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनसे परिचय, उनका तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ जो सबसे मौजूद हैं NP सिंह साहब, सिटी हेल्थ ऑफिसर हैं वाराणसी नगर निगम के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ स्नेहा झा जी मौजूद हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं नेट जीरो की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। और हमारे साथ सेफर टॉयलेट फॉर ऑल की का प्रोजेक्ट भी आपके पास है, थैंक यू सो मच स्नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम सारे कार्यकर्ता आज मौजूद हैं। आप मिशन से जुड़ी हुई हैं और मैं परिचय जानना चाहता हूं, आपको मैं खड़ा करना चाहता हूं, आपका परिचय जानना चाहता हूं। सर मेरा नाम अमीना। मैं एक बात बहुत जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि आखिर कुछ लोग तो ऑरेंज हैं और कुछ ब्लू वाले। ऑरेंज का क्या मतलब हुआ जो ऑरेंज वर्दी आपने पहनी? सर ऑरेंज वर्दी मैंने इसलिए पहनी है कि मैं स्वच्छता की ओर जा रही हूँ और स्वच्छता को अभियान को चला रही हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं अपनी तो मैंने स्वच्छता की ओर के लिए साफ सफाई की है और मैंने अपने आस पास को भी साफ रखा है और मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी साफ और स्वच्छ करूँगी और टॉयलेट के लिए सबको सलाह दूंगी, सब लोग टॉयलेट को यूज़ करिए और हार्पिक का इस्तेमाल करिए, सफाई रखिए, अपने आप को साफ रखिए, अपने बच्चों को साफ सुथरा रखिए। और इससे ये है कि हम अपनी शौचालय को यूज़ करते हैं तो हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बीमारियों से बचते हैं और जो हमारी महिलाएं हैं दुर्घटनाओं से बचती हैं। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? नाम कहाँ से आना हुआ आपका? मैं रोनिया विधानसभा बड़ा वाराणसी का ही हूँ जी। मेरा नाम सुनील कुमार है। इधर आ जाइए मेरे बगल में और उधर देखिए जरा गंगा की तट की तरफ। और अब जब आप बोलेंगे ना तो आपके अंदर का चेहरा भी दिखेगा और स्वच्छता के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं ये। तो ये पहले तो मुझे बताइए, ब्लू वर्दी पहनी है आपने, इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक सफाई कर्मी हूँ। सफाई कर्मी है। पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, पहले प्रणाम करना चाहता हूँ। और ऐसे नहीं होगा तो सारी जनता पहले तस्दीक करेगी, उसके बाद बात बनेगी। थैंक यू सर। अब आप एक बताइए, मैं पहले बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप जाते हैं तो क्या चेंज देखते हैं आप सोसाइटी में? जब आप पहुँचते हैं, जब आप कर्मचारी हैं, तो स्वच्छता के लिए कितनी जागरूकता देखते हैं? सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मैं एक सफाई कर्मी हूँ और जब मैं लोगों के पास जाता हूँ झाड़ू लेकर साफ करने के लिए, तो मुझे सबसे बड़ी बात ये समझ में आती है कि जब साफ दिखता है तो कितना अच्छा लगता है। जब साफ दिखता है तो कितना अच्छा लगता है। सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? खड़े होइए, मुझे तो हाँ सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। तो आपको तो ऐसा लग रहा कि बस इन्होंने रटाया कोई निबंध है। देखिए इनकी बात में कितना दम है। जब साफ दिखता है सुंदर लगता है। जी सर जी, जब साफ लगता है कितना सुंदर लगता है कि मैं एक सफाई कर्मी हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं अपने देश के लिए एक सफाई कर्मी हूँ और मैं
वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के द्वारा मेरी ट्रेनिंग हुई। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के द्वारा? यस सर, मैंने सुना। इसका भी कॉलेज है क्या? यस सर, मैं तो कभी जानता ही नहीं था। जब मुझे अपने दोस्तों के द्वारा मुझे मालूम चला कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज होता क्या है, तब मैं इसके बारे में जाना। और इसके डायरेक्टर हमारे संजय सर, इनके द्वारा आज यहाँ पे बैठे हैं? यस सर। कहाँ बैठे? उधर बैठे हैं। तो ले चलिए ना वहां पे। इतनी देर से क्या कर रहे हैं? इतनी देर थोड़ी ना चल लगना चाहिए। कहाँ बैठे हैं? पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, आपके प्रोजेक्ट को प्रणाम करना चाहता हूँ। इसका भी कॉलेज हो गया? तो कॉलेज का विचार कैसे आया? सर ये विचार ये आया कि जैसे भी हमारे सफाई मित्र ने बताया कि एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज जी, हमने दुनिया में बहुत तमाम कॉलेज देखे होंगे। हाँ। लेकिन ये मन में आया कि एक जैसे इनको प्राउड फील हो रहा था कि हम एक सफाई कर्मी, ऐसे लोगों को फील नहीं होता था कभी। यहाँ तक कि लोगों को, जब हमारे पिताजी या कोई भी बंदा होता था, जब सफाई कर्मी का काम करता है तो उसको ये नहीं लगता, वो ये नहीं बताता कि हमारे पिताजी सफाई कर्मी है। हाँ। एक उनको ये लगता है कि वर्क कॉलेज वर्क, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ। तो हमारे मन में ये विचार, ऐसा कॉलेज को हम लोग इंस्टॉल करें जो हमारे सिर्फ सफाई मित्रों के लिए हो। वाह। वहां पर हम लोगों को सिखाएं कि अभी लोग जागरूक हो गए, लोग शौचालय का प्रयोग करने लगे, लेकिन अब दूसरी दिक्कत ये आ रही कि उसको साफ नहीं रख रहे। जब साफ नहीं रख रहे हैं तो दूसरा को यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये विचार आ रहा है कि अब हम शौचालय का यूज भी करें और साफ भी रखें। और जो हमारा मकसद है, जो आपने सुबह से जो हमारा कैंपेन है, हेल्दी हम, जब साफ रहे टॉयलेट हरदम। क्या बात है, बहुत अच्छा। हेल्दी हम, जब साफ रखे टॉयलेट हम हरदम। जब साफ रखे टॉयलेट हरदम, हेल्दी हम, जब साफ रखे टॉयलेट हरदम, हेल्दी हम। क्या बात है, वाह राजन जी। हेल्दी हम, स्वस्थ कैसे हैं? कॉलेज आया, कॉलेज का विचार आया, वो भी हमें देखा, हमने पूछा, बात करी कि टॉयलेट का कितना उपयोग था। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है सिंह साहब कि स्वच्छता कैसे आए जीवन में। आप तो हेल्थ ऑफिसर हैं वाराणसी में, मैं जानना चाहता हूँ स्वच्छता कितना बड़ा विचार, कितना महत्वपूर्ण हिस्सा और जीवन में उसका कितनी उपयोगिता। पहले को बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने एक ऐसे विषय को छुआ है कि जिसको कि हर व्यक्ति अपनाना चाहता है, स्वच्छता और साथ में पानी को बचाना, जिसको लेके जो न्यूज़ 18 का ये जो मुहिम है, इसको मैं पहले बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। और सबसे सर्वप्रथम मैं नमन करूंगा, ये हमारे कर्मी नहीं हैं, ये हमारे सफाई मित्र हैं। ये हमारे सफाई मित्र हैं जिनको कि समाज ने पहले हे दृष्टि से देखा था, आज इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इनके पाँव को पखार के इनके पाँव को धो चुके हैं। जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, ये वही स्थल है जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे स्वच्छता की अलग पूरे देश और पूरे विश्व में जगाई थी। आज आपकी मुहिम के द्वारा ये जो संदेश जा रहा है, बहुत बड़ा संदेश है कि यदि हम स्वच्छ हैं तो हमसे रोग दूर भागेगा। और आज वो कोविड संक्रमण काल जब याद आता है, जो लोग सिहर जाते हैं, तो हम बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि हमारे इन्हीं सफाई मित्रों की वजह से पूरा बनारस कोविड संक्रमण काल में बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हम लोगों ने बचाव किया। देख रहा हूँ कुछ परिवार भी खड़े हैं और उनको टटोल लेते हैं। नमस्ते। उतनी दूर दूर खड़े रहेंगे? नहीं, मैं पास ही आना, लखनऊ से आया हूँ आज हूँ। हाँ। और मैं लखनऊ में, मेरी यहाँ मीटिंग है। कौन कौन लोग आए हैं आपके साथ? हमारी वाइफ है, ये मेरा बेटा है। हाँ। और ये मेरा एक छोटा बेटा है। हाँ, क्या नाम है इनका? इनका नाम है पार्थ पाठक। पार्थ। और इनका नाम है पाठक। और उनका? ये अनुपम पाठक, मैं अमित पाठक। अमित जी, कुछ कहना चाहते थे आप? जी हाँ, कहना चाह रहा हूँ कि स्वच्छता ही जीवन है। क्या बात है। किस विभाग में काम करते हैं आप? मैं मेडिसिन विभाग में हूँ। मेडिसिन में हूँ जी। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैक्लियोर्स फार्मा में, लखनऊ हेडक्वार्टर में जी। और जब जीवन है तो सारी एक्टिविटीज है। क्या बात है, स्वच्छता से ही होती है। ये बात सच है कि आज जो हम इस मिशन पे यहाँ पे अस्सी घाट पे मौजूद हैं, हार्पिक और न्यूज़ 18 मिशन का जो ये एक अभियान है, इसमें स्वच्छता पे आज बात कर रहे हैं। और हम जाना चाहते हैं वहाँ तक जिसे कहते हैं टॉयलेट, वहाँ तक की यात्रा करना चाहते हैं। और आज भी देखिए, मोदी जी के आने से इस पे विशेष एक प्रधानमंत्री जो है, अगर लाल किले से ये छोटी सी बात है तो बड़ी बात, क्योंकि स्वच्छता जीवन है और जीवन ही सब कुछ आधार है। तो अगर एक प्रधानमंत्री हमारे अगर छोटी सी बात को टच कर रहा तो ये बड़ी बात है। और मोदी जी ने गांधी जी की बातों को आगे ले गए हैं, स्वच्छता ही जीवन है, और उसको आज पूरा भारत के सिवा पूरा वर्ल्ड उस चीज़ को फॉलो कर। बिल्कुल, गांधी जी ने कहा कि
हमें अपना खुद साफ करना चाहिए, जो मल है उसको खुद साफ करें। शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही पाठक जी कि स्नेहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं। स्नेहा जी, ये बात लोगों तक पहुंची तो है, लेकिन स्वच्छता का जो पूरा जो कैनवस है उसमें बात उन्होंने कहा वो ड्राइंग रूम तक जाती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भी हुआ है बेहद महत्वपूर्ण हुआ है कि ड्राइंग रूम की चर्चा, लाल किले से प्रधानमंत्री बात करते हैं, उन्होंने कहा कि बात छोटी है लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है। स्नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने एक बात कही कि ये एक सोच है और इसी सोच को हमने एक मुहिम में बदला है। चाहे आप हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की बात करें या सेफर टॉयलेट फॉर ऑल प्रोग्राम, जिसको मैं बहुत ही प्राउडली रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे जितनी भी महिलाएं देख रहे हैं जो ये ऑरेंज ड्रेस में हैं, ये सब स्वच्छता प्रहरी हैं। और ये स्वच्छता प्रहरी घर घर में सफाई और जो मतलब स्वच्छ पानी की, सफाई की, इन सब का अलग जगा रही हैं। जब हम सोच की बात करते हैं तो कोई भी काम तभी सफल हो सकता है जब वो एक सोच एक मुहिम में बदले और वो मुहिम घर घर तक पहुँचे। और हमारे कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, ये सब हम एक गांव तक पहुंचाएं, गांव के घर तक पहुंचाएं। क्या नाम है आपका? पहले तो सर मैं नमस्ते प्रणाम करना चाहती हूँ आपको। मैं पहले आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। इतने अच्छे मिशन से आप जुड़ी हैं, मैं ही जो है ना लगा कि ये क्या गजब, मैं अभी तक नहीं बात कर पाया था। और मुझे लगता है जैसी वो बात कह रहे थे ना, छोटी सी बात है लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात है। जी, कुछ कहना चाह रही थी आप? सर मेरा नाम सीता यादव है, हम बिन्नो ब्लॉक से, जिला गाजीपुर, और डायरिया नेट जीरो से जुड़े हैं। डायरिया नेट जीरो? हाँ। अच्छा, डायरिया नेट जीरो क्या है? ये डायरिया नेट जीरो हम स्वच्छता पे काम कर रहे हैं सर। और हम डायरिया एक बीमारी है जो कि पानी से संबंधित है, और शौचालय उपयोग कर रहे हैं तो हम बीमारी से बचते हैं, साफ रखते हैं। तो ये जाके आप बताती हैं लोगों को? सर हम खुद पहले जागरूक हुए और गांव-गांव जाकर के सबको जागरूक। अच्छा, मुझे भी जागरूक होने का पूरा मौका दीजिए। स्नेहा जी मेरी तरफ देख रही हैं, क्योंकि मैं मुझसे पूछिए सवाल डायरिया नेट जीरो क्या है तो मैं बता पाऊंगी। जी बताइए, डायरिया नेट जीरो क्या है? देखिए, अभी भी डायरिया कहने को एक बहुत ही छोटी सी समस्या लगती है और गांव में इसको लोग बहुत ही मतलब दरकिनार कर, नजरअंदाज कर देते हैं। और होने वाली मौत पे अगर आंकड़ा डालें तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े मतलब आप देखेंगे तो हजारों परिवार हर साल यूपी में मतलब अपने नौनिहाल को खो देते हैं। इसीलिए जो हमारा फोकस है कि जो एक छोटी सी चीज़ जिसको हम आसानी से एक सिर्फ साफ सफाई का ध्यान रख के अपने जान बचा सकते हैं, इस कार्यक्रम की मुहिम वही है। जब हम कहते हैं डायरिया नेट जीरो एंड सेफर टॉयलेट फॉर ऑल, तो जब मैंने कहा ये मुहिम है हमारा, तो कैसे डायरिया से होने वाले जो मृत्यु है उसको हम बिल्कुल नगण्य कर दें। सर, इसमें फिर आपकी उपयोगिता कैसे आती है स्वास्थ्य अधिकारी होने के नाते? जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि डायरिया एक बहुत ही मतलब भयावह बीमारी रही है एक समय में, और ये हमारी स्वच्छता से सीधे जुड़ा हुआ है। सिर्फ शौचालय ही बना लेना अपने आप में काफ़ी नहीं है। हमको अपने आप को हाथ कैसे धोना है, विसंक्रमित कैसे होना, ये भी एक कला है, जिसके लिए कि जो ये NGOs हैं या आपके इस टीवी के माध्यम से लगातार के लिए भी हम लोग लगे रहते हैं, जन जागरूकता करते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे एक हमारे युवा साथी हर्ष पांडे ने बताया गोंडा की बात, खुले में शौच, इससे मुक्ति के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण जो भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है, बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि पिछले 3 साल से लगातार बनारस ODF 2+ है, यानी खुले में शौच से मुक्ति पूरे बनारस को मिल चुकी है। स्वच्छ भारत हो सुकर अभियान बा, सात जन प्रधान बायना। स्वच्छ भारत हो सुकर अभियान बा, सात जन प्रधान बायना। स्वच्छ भारत हो अभियान बा, सात जन प्रधान बायना। बड़ा आनंद ले रहे हैं आप, हैं? खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। और जब आप ब्लू वर्दी में तो इसका मतलब हो गया आप कर्मी जी, मित्र। यस। और हमारी ड्राइंग रूम में तक पहुंच के चर्चा का विषय बन जाने वाले वो कर्मी जी, मित्र। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। जयप्रकाश जी, आपको क्या लगता है आपके जीवन में कितना बदलाव लाया ये, और आपने कितना बदलाव देखा समाज में? बहुत बहुत, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मैं देखता हूँ कि गंदगी है तो मुझे बहुत ही दुखी होता है अंदर से, मगर उसको हम साफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
हम लोग एक सफाई कर्मी में गिने जाते हैं। आपका नाम? निवेदिता पाठक। निवेदिता, क्या कर रही हैं आप? सर हमारा एक एनजीओ है और वो तो मैं जान ही गया, क्योंकि इतना डेडिकेशन अगर है तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो संगठन है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप क्या करती हैं? मैं सर बीए कर रही हूँ फिलहाल, पॉलिटिकल ऑनर्स। फिलहाल नहीं, हाँ कर रही हूँ बीए, है ना? सर कर रही हूँ बिल्कुल। हाँ, तो क्या क्या विषय हैं आपके? सर पॉलिटिकल ऑनर्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। सोशियोलॉजी मतलब ये समाज से तमाम सारे पहलुओं को जुड़ती हैं। हाँ, आप बताइए जो आपका विचार है, अब मैं जानना चाहता हूँ। एक बड़े पायदान पे बैठ के एक ऑफिशियल पोजीशन ऐसे कहता है ना कि कह दिया कि अरे नहीं भारत माता की जय, तो रूम में बैठ के भारत माता की जय कहने से क्या होगा? आपको उठना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या बात है! देखा, भारत माता की जय सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा सर, कैसे चलेगा? आप जरूरी है कि आपके लिए सरकारी पदवी, सरकारी पोजीशन, जब आप भारत माता की जय कर रहे हैं तो आप पहले से कह रहे हो ना कि आप नागरिक हो, नागरिकता का प्रमाण देना तो पड़ेगा ना। इतना देश के लिए इतना तो प्रेम दिखा सकते हो कि उठो अपने रूम का तो झाड़ू लगाओ। और आज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ डे है, जिस पर हम ये चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य कैसे होगा, इस पर तमाम तरह की परिचर्चा है। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, जब आप कॉलेज में होते हैं तो और वहाँ पे ट्रेंड लोग निकलते हैं, इंडस्ट्री ग्रो करती है और इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए चीज़ है, सवाल आते हैं कि कैसे हम इसमें स्कोप देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे मिलती है और स्किल्ड लोग जब मिलते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है? सर मैं बता दूं कि जो रैकेट इंडिया का ये जो यहाँ पे मुहिम चल रहा है, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज जो हार्पिक के एक मुहिम के साथ चला है, यहाँ पे जितने भी हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं, हम इनको 5 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं। एक जो कॉलेज की हम बात करें उस पर हम उनको सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं, हम उनको वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं, हम उनको जॉब वर्क की बात करते हैं। वो जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ काम करें, उसके लिए बहुत ज़रूरत है उनकी प्रिकॉशन की, तो हम उसकी भी बात करें साथ। क्योंकि कूड़ा कई तरह का आ रहा है। हाँ। तो वो क्योंकि जो सैनिटेशन वर्कर, जिसे हम सफाई मित्र की बात करें, तो ये सफाई मित्र अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम करें। जो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं उनके लिए कम से कम ग्लव्स हो, शूज हो और कम से कम उनके पास मास्क हो, तो वो ट्रेनिंग उनको वो हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट के द्वारा हम लोग प्रशिक्षित करें। दूसरी बात ये आती है कि वो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब नहीं है। यहाँ पर जिससे स्वच्छता चौक बनारस में बहुत सारे हैं, तो वहाँ से भी हम लोगों को ट्रेन करते हैं और जितने भी उनकी स्किल के आधार पर जो भी उनकी क्वालिफिकेशन होती है उसके आधार पर हम जितने भी हमारे होटल्स हैं वहाँ जो उनको सैनिटेशन वर्कर के साथ जो उनकी हाउस कीपिंग का वर्क होता है, हम सर वहाँ पर उनको प्लेसमेंट दे रहे हैं। कैसा लगता है जब वर्दी पहनते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है कि अपने घर से निकल रहे तो साथ हम जा रहे साथ काशी को साफ करने के लिए। हाय हाय सूरज भाई, इनके लिए तो बनता है ना सैल्यूट। क्या बात है, हम जिस पर चलते हैं उसको ये साफ करते हैं, है ना? आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम नारायण है और मैं शिवपुर वार्ड में सफाई मित्र हूँ। हाँ, तो सर मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता था कि सबसे पहले मैं वर्ल्ड हार्पिक टॉयलेट और न्यूज़ 18 प्लस अपने नगर निगम का आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि मुझे इतने में आने का अवसर मिला। तो मैं खास तौर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने राम नारायण जी समय निकाला और हमारे पास आए। सर मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो हुआ है ये मेरी लाइफ का मुझे लगता है कि बेस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम है। लेकिन इसमें सब कुछ तो आप लोगों ने बताया, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं रह गई जो हम लोगों को जानकारी के लिए नहीं रही। बस उसमें एक मैं छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ और वो बात ये है सर कि आज हम लोगों ने एक चीज़ देखा जो इतनी बड़ी बात है कि मेरे पास उस चीज़ के लिए शब्द ही नहीं है। अभी हमारे ग्रेजुएट बच्चों ने जो ये सफाई का जो कार्य आया है, ये हम लोगों को एक आईना का काम किया, इन लोगों ने दर्पण दिखाया इन्होंने। सच है, ये सच है। तो सर मैं यही बात कहना चाहता हूँ अपने सफाई मित्रों से, खासकर ये मेरा आह्वान है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सर ये अपने बच्चों को शिक्षित करें। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। और ये बोलना है एक बार भाई सबको, है ना? बोल देंगे आप? हमें तो लग रहा है कि आप हमसे ज़्यादा अच्छा बोल सकती हैं। खड़ी हुई है तो हमने क्या बोला बताइए? आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। क्या बात है, क्या बोला है? हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। क्या बोला हमने? वर्ल्ड हेल्थ डे में आज हम क्या हैं? हेल्दी। सब सारे लोग बोलेंगे हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। Healthy
हेल्दी रहे हम जब साफ रखे टॉयलेट हरदम. दिस इज आवर मैसेज ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे. मिशन स्वच्छता और पानी, ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. बने रहिए. Toilet is a basic necessity for all. Along with cleanliness, it's important to ensure that every section of society, every gender enjoys the right to a clean toilet and adopt the right habits to not only keep your family safe but also build a healthier nation. Well, we live in a world where equality is a fundamental right. We often talk about social, political, economic equality, but equity in terms of cleanliness, hygiene is something that never crosses our mind. Mission Swachhata Aur Pani is our attempt to start conversations around the right to clean toilets. It's a right that every human being should have, but the reality is strikingly different. As per UNICEF, 4.94 billion people across the world are still living without safety managed sanitation. There are millions of girls, women, transgender, non-binary persons across the globe who are unable to manage their menstrual cycle in a healthy and dignified manner. So we at Mission Swachhata Aur Pani have been running a relentless campaign for inclusive and clean sanitation, and carrying this agenda further, I'm joined today by the founder of Gramalia, Dr. S. Damodran, Padma Shri Shri Usha Tomar, the president of Sulabh International Social Service Organization, the regional marketing director hygiene at Reckitt South Asia, Saurabh Jain, and also with us, Dr. Tanaya Narendra, social media influencer, also popularly known as Dr. Cutris on Instagram. Also with us, tennis star and multiple Grand Slam winner Sania Mirza. What a power-packed panel we have for you. But Saurabh, let's kick this conversation off. And as we've been, trying to send out this message that it's not just sanitation, but keeping our toilets clean, having access to clean toilets is very, very important for a healthy nation. Do you believe that there is now this acknowledgement, this acceptance that there is this link between the two? No, 100%. I think if I go back to 2014, when it all started, when the PM made this announcement around building the toilets, I think over the period we've seen this more than 90 million toilets that have been created in India, and over time what's kind of happened is with the idea of open defecation kind of ending and the toilets being built at home, the people's relationship with toilet has completely changed, right? What was there as a risk and hazard out there in the field is now in a different form. Now that toilet looms on him, and thereby the relationship with toilet has kind of changed. Even if you look at it, I mean, there's more than 2.2 million deaths on diarrhea that kind of happens. Yeah. And diarrhea, mind you, is something that we can absolutely prevent through proper information. And I think with that in mind, I think there are key steps, I mean, which are kind of really important for us. I mean, this is around hand washing, nutrition and sanitation. While if you go back to the conversation that we've had over the decades, I think there's so much that all of us have heard around hand washing, around nutrition, but sanitation, there's a lot less being heard. And I think together, along with Network 18 and with HARPIC, with Mission Swachhata and Pani, our endeavor is to actually have this critical conversation around sanitation and make sure that the missing link to the diarrhea deaths and to other forms of illnesses that sanitation brings about is also spoken about. This relationship that Saurabh was talking about with toilets, with changing the mind of people, that this is something that is needed. Access to a clean toilet, not just a toilet, but a clean toilet is needed for us to be able to, to be a healthier society, to be a healthier nation. What's been the distance that you believe we've covered in this journey so far? Over the years, more than 30 years, the government of India plans to build toilets for every household in the rural areas as well as in the urban areas. Those days it was very difficult to motivate a family member to construct a toilet, and there's a lot of space available for open defecation, and people used to go for that. But after some time, nearly 5 years, the government of India has struggled to build toilets in each and every households because in spite of the superstitious belief and people don't want to build toilets. But the Swachh Bharat Mission program started in the year 2014 gave a lot of importance and emphasis for toilets, how to build a toilet, the technologies involved. Also motivation and awareness creation through different information, education and communication materials. So now people are willing to construct toilets, use the toilets and also maintain the toilets. Usha ji, बहुत बहुत धन्यवाद. आज
प्रोग्राम में फिर से जुड़ने के लिए। शी इज ऑफ कोर्स बीन पार्ट ऑफ द मिशन स्वच्छता और पानी कैंपेन फॉर द लास्ट 4 years विद अस। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आज आप सुलभ इंटरनेशनल को चला रहे हैं, तो इन्होंने बात की सुपरस्टिशन की, वहम है लोगों को कि घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब शायद वो वहम थोड़ा खत्म होता जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि ठीक है टॉयलेट होना चाहिए, लेकिन फिर भी यूज नहीं हो रहा है, इस्तेमाल शायद ज्यादा नहीं कर रहे हैं। आपने किस प्रकार का नजरिया बदलते हुए देखा है? देखिए मैम, मैं तो खुद ही ये काम करती थी पहले। जब मैं ये मेला ढोने का काम करती थी, टॉयलेट साफ करने का, तो जब उनके घर में काम करती थी तो उनका नज़रिया बहुत बेकार था। जैसे कि हम लोगों को पास बिठाना नहीं, पास बुलाना नहीं, हम लोगों को पास वो आते नहीं थे, नहीं हमको बुलाते थे, उस तरह से उनका नज़रिया था। लेकिन आज कि हर जगह पर पसंद करें कि टॉयलेट होना चाहिए और उसको किस तरह से साफ और सफाई रखनी चाहिए। जैसे कि अभी पहले तो इतना वो नहीं था, जैसे कि मोदी जी ने बोला 2014 से, तब से ज़्यादा ओपन हो गया कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। और जो डॉक्टर पाठक जी हमारे सुलभ इंटरनेशनल के, उन्होंने तो पूरा मतलब 50 वर्ष लगे हैं इसमें, इस कार्य में लगे हुए हैं वो, तो कि हर जगह पर टॉयलेट होना चाहिए और साफ़ सफाई होना चाहिए। अब देखिए उन्होंने जब पक्के टॉयलेट बना दिए, देखिए आज हम लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बदली है। मैंने कभी नहीं सोचा था सपने में भी, क्या मतलब मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा और आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के कुछ बोलूँगी, क्योंकि हम लोगों में ऐसा बिल्कुल था नहीं पहले ऐसा। लेकिन उन्होंने हम लोगों को ये टॉयलेट बनाए, जब से हम लोगों की ज़िंदगी इस तरह से बदली है कि हम सब लोगों को रोज़गार मिल गया और सब लोग साफ़ सफाई से भी रहते हैं। तो हर जगह पर टॉयलेट तो होने चाहिए। जैसे कहते हैं टॉयलेट बनने के बाद उनको यूज नहीं करना चाहिए। देखो लेडीज़ों को तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बिल्कुल। जैसे कि सुबह के टाइम वो सोचती हैं कि कब सूरज जैसे कि पहले उठ के चली जाती है 4 बजे वो, और दोपहर में खराब उनका हो जाता तो क्या करें, ये झाड़ियों में बैठना पड़ता, गड्ढों में बैठना पड़ता उन लोगों को। शाम को वो इंतजार करते हैं सूरज कब छिपे और कब हम लोग जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है, मोदी जी ने और हमारे डॉक्टर पाठक जी ने ये काम किया है कि हर जगह पर टॉयलेट बनाए हुए हैं उन्होंने, और लेडीज़ों को अच्छे से इज्जत और सम्मान से अपना रहती हैं और अपनी नींद सोती हैं और अपनी नींद उठती हैं। वो मैं तो पहले मैं नहीं सोचती थी ये बात, जानती भी नहीं थी पहले। मैंने तो सुलभ में आकर ये सब कुछ सीखा और देखा, और अब आप सिखा रही हैं बाकी लोगों को भी जो देख रहे हैं। जी मैं अब मैं सब लोगों को बताती हूँ कि हर जगह पर टॉयलेट होना चाहिए और उनको साफ सफाई से रहना चाहिए। क्योंकि गाँवों में कि टॉयलेट कोई बात नहीं, हम लोग जंगलों में जैसे कि पसंद करते वो लोग, लेकिन आज वो लोग कहते हैं कि बाद हम लोगों को घर होना चाहिए, पहले टॉयलेट होना चाहिए। तो ये बर्ताव आया है और काफी महत्वपूर्ण बर्ताव है। बट डॉक्टर क्यूट्रिस, let me come to you. Unfortunately, you're not here with us in the studio, but we appreciate you joining us here on the program as well. And I want to pick up on what we just heard here from Usha ji. The disproportionate impact of not having access to a toilet, a clean toilet, on women is massive, which is probably why we don't see women participate in the workforce in India as they should. Probably why you see women having to make choices that, you know, can I travel so far, will I have access to a toilet or not, and so on and so forth. It constrains the movement, the mobility, the choices of women. So Dr. Cutris, let me start by asking you why the name, and B, you know, what are some of the misinformation that you deal with, the conversations that you have online with people on why people don't think about having access to a clean toilet as a right? Why Dr. Cutris is because usually when we think about female reproduction and female genitalia, it's usually considered dirty. And the uterus is our first home. So as somebody who was training to be a gynecologist, I figured that, you know, we need to restructure how we see the uterus. And the uterus is our first home. It's cute and cozy. So I thought that Dr. Cutris would work very, very well. Coming back to the more important issue at hand, which is that when women don't get access to facilities like toilets, you know, you set them off on a bad start from the very get-go, from the start of their life, when they're not able to access toilets in schools, for example. I think there's some data that suggests that more than 30% schools don't have toilets for women. So if you don't have a toilet, how are they going to go manage? बच्चा पूरे दिन शूशु पोटी बैठ के थोड़ी रुके बैठे थोड़ी रहेगा, which means that, you know, they drop out of school, which means that there's fewer and fewer educated or trained women who can join the workforce, which of course means there's lack of empowerment, they're not able to be emancipated.
they're not able to be empowered. Yeah. And that has such far-reaching consequences. Something as simple as a toilet can dictate the quality of somebody's life and can dictate the whole journey of their life. Harpik and News 18's Mission Swachhata Aur Pani for sustainable sanitation has been inspired by the Prime Minister's call for cleanliness, and we've been getting immense support from across the country. Sania Mirza, my very question to you, thank you to start with for being a supporter of this campaign. Why does it resonate so strongly with you, and why do you believe it's touched a chord with so many people? Well, I think first of all, it was an honor to be associated with such a campaign when it started, which was the Swachh Bharat, because of the very fact that we all knew that we all, our kids and us, we all deserve to live in a cleaner India. And I think that was something that was very important. And I'm so glad that our Honorable Prime Minister, you know, even had that mission. And now with this mission of Swachhata Aur Pani, this is something to do with sanitization, it's something to do with clean water. To do for the future of our country. It's for the people, it's by the people, and it's of the people. And I feel that you know, it's very inspiring that our very own Prime Minister is someone who is taking his special care in this, because I guess we all understand how important this is for the development of any country moving forward. And I think the basic need of clean water, drinking or sanitization is the basic in the basic sense we can move forward as a country. No, absolutely. Thanks very much, Sania. And yes, we do need to prioritize this. We need to focus on this if we want to move towards that aspiration of being a developed nation. So, you know, on that front, let me talk about what is a very interesting thing that Reckitt is doing, which is setting up these toilet colleges across the country. You know, Usha ji was just talking about the fact that she started her life, her journey as a sanitation worker. And again, I bring this back in 2023, that should not have to be the case. So yes, technology can play a role, but also dignity. And, you know, how are you going about trying to address both these issues? No, and like Usha ji was saying some time back, ये थोड़ा सा mindset का issue था. When India में, if you look at it, the worst sufferers in any form of occupation is the people who belong to the lowest in the economic ladder. अगर आप देखोगे ये पूरा एक vicious cycle बन जाता है. You don't have the right means, आपको proper education, proper skill sets नहीं मिलते, and then you don't get absorbed in the organized sector. Then you have to work in inorganized sector, and you're absolutely, when you look at sanitation as a cycle, you're absolutely at the bottom of it. So when we looked at it with our partners at Jagran and World Toilet Organization, we thought यहाँ पे एक opportunity है for us to actually go in and address, because when you talk of equality to a great extent is about gender. It is also about addressing everyone in the social system as well. And that's why हमने जब ये वर्ल्ड टॉयलेट कॉन्सेप्ट का कॉलेज का कॉन्सेप्ट एनविसाज किया था, तो हमने बोला था कि ये जो साइकिल है ना, इसको कहीं ब्रेक करना है. So these are the people who've not got the chance actually to go to school and college. Right. What can we do is actually just provide them vocational training programs, so that for once in a life we can actually put them back to college, give them the right skill sets that are required, so that they can then be absorbed in the organized sector. And I think I'm very happy to say that now Harpik World Toilet College is in 15 states. We're impacting more than 30,000 not only individuals but their families and generations to come as well. Absolutely. And giving them not only a life of means, but also, you know, in terms of dignity, much better. I think these are people who are now absorbed in formal sectors. They're people who get opportunities in hotels and hospitals. Yes. And I think nothing makes you know, us at Reckitt proud of all the work that we've done. I think this is the one that stands absolutely tall. No, absolutely, and congratulations to you and the team at Reckitt. 15 states, 30,000 people directly impacted, and as you point out, the indirect impact is significantly higher. Sania, you know, since we're talking about clean toilets and how women have to hold their pee, and you know, all of us have done it at some point or the other, and very frequently so. What's the experience been like for you on this? Of course, now you've retired, but through the course of your journey, has it gotten better? Have you, especially when you travel within the country or when you travel abroad, I mean, what's the experience been like for you as a woman athlete? Yeah, most definitely, and I think that I can definitely say that especially nationally, you know, because I used to travel as a young athlete when I was 12 years old, you know, in trains, in local trains, and
at railway stations and things like that, and things were very, very different at that point. I mean, it was so difficult to even go and find a clean toilet, be it male or female, but especially for female to go and find a clean toilet. Railway station was actually a mission, and today we have reached a stage where, you know, we have toilets in different parts of the city. We have you know, portable toilets, and we have there's actually a thought process going in it that this is something that is very important for the development of a country and for the women to move forward as well, because it is very empowering to have that, you know, because it gives women confidence to sort of go out and not be worried about basic needs of sanitization and bathrooms and toilets. So I think that I see obviously a huge difference over the last, you know, 15-20 years, and you know, with missions like this, that we are just going to move forward. Yes, and the hope is that we will not just move forward, but we'll accelerate the move forward as well. It is each one of us, we all have to play a part in ensuring that we move towards better sanitation, cleaner toilets, and of course support the efforts of organizations who are doing their best, like Dr. Damodaran and Usha ji here. Thank you very much, Saurabh, Usha ji, Dr. Damodaran and Dr. Cutress for joining us here. Thank you very much, Sanya, for joining us here as well. That is it then, ladies and gentlemen. Don't forget, it is important to connect the two, sanitation with a healthy nation, and that is something that we want to reinforce as we leave you. Thanks very much for watching this special conversation, and remember to stay tuned to our campaign. मिशन स्वच्छता और पानी के सीजन 3 की ये मुहिम आगे जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। टॉयलेट हर इंसान की आम जरूरत है, फिर भी साफ टॉयलेट के विषय में हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। टॉयलेट सिर्फ बीमारियों का गढ़ नहीं, भेदभाव का भी गढ़ है। इसलिए टॉयलेट की स्वच्छता के लिए साफ सफाई के साथ यह भी जरूरी है कि समाज के हर वर्ग, हर जेंडर को एक साफ टॉयलेट का अधिकार मिले और हर सफाई कर्मचारी को एक सुरक्षित वातावरण। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि देश को भी सुरक्षित रखने के लिए जुड़िए हार्पिक और न्यूज़ 18 के मिशन स्वच्छता और पानी के साथ। हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। Welcome back to all of you who are watching Swachhata Aur Pani Season 3. This is a campaign to encourage good sanitation practices for a healthy India. स्वच्छता प्रहरी हार्पिक के सेफर टॉयलेट्स फॉर ऑल कैंपेन के फुट सोल्जर्स हैं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आइए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट रैकेट की इस पहल और इसके इम्पैक्ट पर। गंगा नगरी वाराणसी से कुछ कदम दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में तरछा चौबेपुर नाम का एक गांव है, जहां आम महिलाएं स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत खास काम कर रही हैं। इन स्वच्छता प्रहरियों का लक्ष्य है सेफर टॉयलेट्स फॉर ऑल और डायरिया नेट जीरो के जरिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया से जुड़ी मौतों को रोकना। ये जो प्रोजेक्ट है डायरिया नेट जीरो और सेफर टॉयलेट फॉर ऑल उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में क्रियान्वित कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 10,475 स्वयंसेवी महिलाओं को स्वच्छता प्रहरी के रूप में तैयार किया है। हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ कि हम गाड़ी गए थे ट्रेनिंग में, और वहीं हमारी डीसी मैडम है वो आई थी, हमसे मिली और बोली कि आप लोग को स्वास्थ्य विभाग में काम करना है, स्वच्छता प्रहरी आप लोग बनेंगी और जा कर के गांव-गांव दीदी लोग को ट्रेनिंग देंगी स्वास्थ्य के बारे में। ये जो स्वच्छता प्रहरी महिलाएं हैं, इनकी भूमिका अपने आप में अद्भुत है। यह स्वयंसेवी के रूप में सुबह अपनी दिनचर्या का शुरुआत करती हैं, यह घर घर का भ्रमण करती हैं। हम साफ सफाई और डायरिया से बचने का उपाय बताते हैं कि दीदी आप लोग शौचालय साफ रखिए और सभी आसपास का साफ सफाई का ध्यान रखिए। आप सफाई करेंगी तो बीमारी से बची रहेंगी, आप भी स्वस्थ रहेंगी और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे।
मेरा बच्चा जब 7 महीने का था तो मेरे बच्चे को लैट्रिन हुई, उल्टी हुआ, बुखार हो गया, मेरा बच्चा पूरी तरह गनगनाने लगा। मेरा एक बेटा है 2 साल का, उसको ऐसी बीमारी होने लगी जिससे उल्टी करने लगा, उसका पेट चलने लगा। हमने सोचा कि हमारे बच्चा है कि नहीं बचेगा। तो मेरे दिमाग में आया कि 2 से 3 बार बताई थी दीदी कि अगर बच्चे को दस्त होने लगे तो उसको ORS का घोल देना चाहिए और जिंक की गोली देना चाहिए। दीदी हमको एक जिंक की गोली दी, ORS का घोल दी, कहीं कि ये ORS का घोल है, इसको घोल 1 लीटर पानी में 1 पैकेट घोल के बच्चे को पिलाना है, 24 घंटे तक लगातार पिलाना है इसको। काफ़ी सुधार मिला, मतलब यही दीदी लोग बताए थे और मैंने अपना काम कर लिया। मेरा बच्चा स्वस्थ होकर घर आ गया। शौचालय की नियमित सफाई। यह महिलाएं WHO के द्वारा सुझाए गए जो 7 सूत्र हैं, उन 7 सूत्रों के बारे में बताती हैं, उन्हें जागरूक करती हैं। पहला है साबुन से हाथ धोना, और दूसरा है स्वच्छ पेयजल, और तीसरा है सुरक्षित शौचालय, चौथा है टीकाकरण, 5वां है स्तनपान, और 2 जो उपचार है, एक जिंक की गोली है, एक ORS का घोल है। सार यह है कि यह महिलाएं कहीं न कहीं स्वच्छता और स्वास्थ्य, जो कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर वह स्वच्छ हैं तो वो स्वस्थ हैं। और एक बात कही गई है ना कि स्वच्छता है अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। तो ये बात कहीं न कहीं हमारी स्वच्छता प्रहरी, ये जो महिलाएं हैं, वो चरितार्थ करती हैं कि हम धन से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम सेहत नहीं खरीद सकते। हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। शरीन, तो ये थी वर्ल्ड हेल्थ डे पर हमारी खास पेशकश मिशन स्वच्छता और पानी, न्यूज़ 18 नेटवर्क और हार्पिक का ये इनिशिएटिव आज क्लीनलीनेस और सैनिटेशन चैंपियंस को साथ लेकर आया, और हमने बात की और जाना कि कैसे साफ एक स्वस्थ देश के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल आनंद, बहुत जरूरी है। This is the beginning of a mass movement, a Jan Andolan, where we will educate one and all about the critical link between sanitation and health. So in this season of Mission Swachhata Aur Pani, we go deeper into the need for safe sanitation and drive advocacy for access to clean toilets, but for all, Anand. Let us come together to learn toilet etiquettes, make sanitation inclusive, and ensure everyone's right to dignity through accessibility to a clean toilet. For more information, log on to the link on your screens. Thank you so much for watching this very special Anand. जी नमस्ते, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।